I had a spiritual father. मेरे एक आत्मिक पिता थे His name is Pastor Susai Joseph. और उनका नाम है पासबान सुसाई जोसेफ। One day he called me and he told me to read a verse. और एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि एक वचन को खोलकर पढ़िए। I would like to read. We all can turn. हम सब इस वचन को खोलेंगे। Okay? I often read a verse which is in Deuteronomy chapter 1 verse 8. व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 8वें वचन में जो वचन लिखा है उसे कई बार मैं पढ़ता हूँ। And I only read that 8. और मैं केवल उसी 8वें वचन को पढ़ता था। I didn't read beyond that. उसके आगे कभी पढ़ा नहीं। So let us read verse 8. तो हम 8वें वचन को पढ़ेंगे। Can we all read it together? क्यों ना हम सब साथ मिलकर इसे पढ़ें। Chalo. See, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac and Jacob, to give to them and their descendants after them. I stop with this and I always tell myself, I will possess the land. और मैं हमेशा यहाँ तक पढ़ता था और मैं कहता था कि मैं इस जमीन को अपने हक के तौर पर पाऊंगा। Because the Lord has sworn this land to my fathers. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पिताओं को इस जमीन को अब वायदे के तौर पर दिया है। But he told me, you read verse 11. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम 11वें वचन को भी पढ़ो। For the first time in my life, I read that word. और पहली बार अपने जीवन में मैंने उस 11वें वचन को पढ़ा। It just blew my mind. और इसे मैं पढ़कर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। Can we read that? क्यों ना हम इसे पढ़े? May the Lord God your fathers make you 1,000 times more numerous than you are and bless you as he has promised you. So from that point onwards, I forgot verse 8. और उस समय के पश्चात 8वें वचन में जो लिखा है वो मैं भूल गया। But I was all the time saying verse 11. और हमेशा मैं इस 11वें वचन को पढ़ते रहा। Later in my life, और फिर मेरे जीवन में कुछ काल बाद I understood two things. दो बातों को मैंने समझा। When we accept Christ, we begin to live in the physical also, in the spiritual also. जब हम मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, हम शारीरिक तौर पर भी जीते हैं और आत्मिक तौर पर भी जीते हैं। After we come to Christ, it doesn't mean that we stop living on this body. मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं होता कि हम इस देह में नहीं जी रहे हैं। When God created Adam and Eve, he said the first thing is be fruitful and multiply. और जो पहली बात जो परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि के बाद कही थी वो ये थी कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। God never changed. परमेश्वर कभी बदला नहीं। God's command never changed. और उसके आदेश कभी बदले नहीं। Many things changed after that. कई बातें उसके बाद बदल चुकी थी। But God will never change. लेकिन परमेश्वर कभी बदला नहीं। If you ask God today, अगर आप परमेश्वर से आज भी पूछें, what should I do? मुझे क्या करना है? God will say, be fruitful and multiply. परमेश्वर आपसे कहेंगे तुम फलवंत हो जाओ और बहुगुनी बन जाओ। So this is not only for believers, even for unbelievers, the whole humanity. We need to be fruitful and multiply. ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं है बल्कि सारी इंसानियत के लिए है कि आपको फलवंत बनना है और आपको बहुगुनी बनना है। In the physical, I need to become fruitful. शारीरिक तौर पर मुझे फलवंत बनना है। For that, what should I do? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? I should have 3 children. मुझे कम से कम 3 बच्चे होने होंगे। Right? I want to. How many of you are married? मैं नहीं जानता आप में से कितने विवाहित हैं? कितने लोग married? Young. जवान हैं? Young and married. You all should have 3 children. आपके 3 बच्चे होने चाहिए। Okay? Then only you multiply. और तभी आप जाके बहुगुनी होते हो। If you have 1 kid, अगर आपके एक ही संतान you है, diminish. तो आप खत्म हो जाओगे। You diminish. और आप कम हो जाते हो। If you make 2 children, अगर 2 होते हैं you maintain. और आप सिर्फ चला रहे हो, ठीक ठाक चल रहा है। Okay, if you have 3 kids, अगर आपके 3 होते हैं you multiply. तो आप बहुगुनी होते हो। You multiply. आप बहुगुनी होते हो। It's God's desire ये परमेश्वर की इच्छा है that every one of you multiply. कि आप में से हर एक बहुगुनी होते You जाए। all should be married आप सभी को विवाह and करना you है should have 3 children. और आपके 3 संतान होने। The second life we have is a spiritual life. जो दूसरा जीवन हमारा है वो आत्मिक है। In spiritual life, we need to multiply into 1,000.
आत्मिक जीवन में हमें 1000 गुना बढ़ना है। We need to multiply into 1000. हमें 1000 गुना बढ़ना है। Tell 1000. आप कहे 1000। Physically, you need to have 3 children. शारीरिक तौर पे कम से कम 3। Spiritually, you need to have 1000 children. आत्मिक तौर पे 1000 गुना आपको बढ़ना है। But today, what we do is, लेकिन आज हम क्या करते the हैं? moment we accept Christ, जैसे हमने मसीह को अपने जीवन में स्वीकार लिया, we join one church. हम एक कलीसिया में जुड़ जाते हैं We become member. और वहां के सदस्य बन जाते हैं। Then we become member and a very important member. और फिर हम एक सदस्य बनते हैं, फिर बहुत महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं। Okay? That is not what God has created you for. लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए इतनी बात नहीं रखी Your है। business is not to join churches. आपके काम केवल एक कोई कलीसिया के साथ जुड़ना नहीं Your है। business is to start churches. आपका काम है कि आप कलीसिया को शुरुआत करें। Today, somewhere we have lost what God wants us to do. और जो परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में करना चाहता था, वो सचमुच हमने शायद खो दिया है। Okay? Every one of your business is to start a church. आप सभी का काम यही है कि आप एक कलीसिया की शुरुआत करें। On this day, I want to tell every one of you, और आज के दिन आप सभी से मैं you are कहना not चाहता हूं, here to settle here. आप केवल यहीं पे स्थापित होने के लिए नहीं You हैं। have to leave this place, आपको इस जगह को छोड़ना होगा, go out बाहर निकलना होगा and start a church. और एक कलीसिया की शुरुआत करनी होगी, Start a fellowship. एक सभा की शुरुआत करनी होगी You begin to multiply. और बहुगुनी होना शुरू करें। Tell your friends, tell your neighbor. अपने begin साथ to जो बैठे हैं multiply. उनसे कहे कि तुम्हें बहुगुनी होना है, Multiply. बहुगुनी होना है, Multiply. बहुगुनी होना है, Multiply. बहुगुनी होना है। That is what we are created for. और इसी कारण हमारी सृष्टि हुई है। That is what we accept Christ for. और इसीलिए हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में You स्वीकारा have है। accepted Christ with one work to multiply. आप एक काम के लिए यीशु मसीह को आपने स्वीकारा है ताकि आप बहुगुनी होते जाएं, Plan to multiply. ताकि आप ये योजना बनाएं किस प्रकार आप बहुगुनी बने। Physically, we all multiply, right? और शारीरिक तौर पर हम सब बढ़ते जाते हैं। Small girls carry uterus. छोटी जो लड़कियां होती हैं वो भी ऐसे गर्भपात्र को लेकर चलती है। A day will come, एक दिन आएगा she will become a mother. वो एक मां बनती है। When physically God has created us this way, even spiritually, we all have to multiply. जब शारीरिक तौर पर परमेश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया है तो आत्मिक तौर पर भी हमें बहुगुनी बनना है। So today I thought I will share one thing, one secret of multiplication. और आज मैंने सोचा कि आज ये बहुगुनी होने का एक रहस्य मैं आपको बताऊंगा। Right? One secret of multiplication. एक रहस्य किस प्रकार बहुगुनी होना है। See, everyone is deeply religious. हमें से हर एक जो है बहुत ही धार्मिक है। We all are religious. हम सब बहुत ही ये धर्म के पीछे चलते हैं। We have a lot of identities we have. बहुत सारी पहचान हमारी है। Every identity is a religion. हर एक पहचान जो हम लिए चलते हैं वो एक धर्म बन जाता है। Our race is a religion. हमारी रेस जो है वो एक धर्म बन जाता Our है। mother tongue is a religion. हमारी मातृभाषा जो है वो भी एक धर्म बन जाती है। Our caste is a religion. जिस कास्ट से हम आते हैं वो एक धर्म बन जाता है। Our hometown is a religion. हमारा गांव जो है वो एक धर्म बन जाता है। Even our beliefs are religions. और हमारे जो विश्वास भी है वो भी एक धर्म बन जाता है। We are religious. ऐसे देखें तो हम सब ऐसे किसी न किसी एक धर्म को पकड़े खड़े But हैं। God has started a war against religion. लेकिन परमेश्वर ने एक युद्ध बोला है इस धर्म के खिलाफ। Jesus is against every religion. यीशु मसीह हर एक धर्म के ही खिलाफ है। What is a religion? धर्म क्या होता A है? religion rules man with ignorance and fear. और धर्म जो है वो मनुष्य पर राज्य करता है, वो अज्ञानता से और डर के से। When I say religion, I include Christianity also. जब मैं धर्म कहता हूं तो उसमें ईसाई धर्म भी आता है, And Judaism also. यहूदी धर्म भी आता है। Many of us, we think they are good religion. हम में से कई ऐसे सोचते हैं कि ये शायद अच्छे धर्म होंगे। There is nothing called Christianity in the Bible. बाइबल में ईसाई धर्म ऐसा कुछ है ही नहीं। Jesus has called us as not as good Christians. He called us as my own people, my family. और यीशु मसीह ने हमें कोई अच्छे ईसाई लोग ऐसे कहकर नहीं पुकारा है, बल्कि कहा है मेरे परिवार, मेरे अपने लोग। So when a man accepts Christ, he comes into a part of God's family. तो जब एक व्यक्ति यीशु को स्वीकारता है वो परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन जाता We है। need to be delivered from religion. हमें धर्म से छुटकारा पाना है। Okay? Now, to destroy religion,
God made a system और इस धर्म का नाश करने के लिए ही परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया that is called as grace. और उसका नाम है अनुग्रह। Grace is God's war against religion. और अनुग्रह ये परमेश्वर का युद्ध है ये धर्म के खिलाफ। Religion is very attractive, और धर्म बहुत ही हमें आकर्षित लगता है, but God is more attractive. लेकिन परमेश्वर और अधिक आकर्षित है। What is grace? ये अनुग्रह क्या है? Grace is the injustice God did to himself. जो अन्याय परमेश्वर ने अपने आप के साथ किया उसी को अनुग्रह कहते हैं। That is called grace. उसी को अनुग्रह कहते हैं। Now the word grace is basically against all justice. और जो अनुग्रह है ये न्याय के ही खिलाफ खड़ा हो जाता It's है against all righteousness. और सारी जो धर्मी स्वभाव है वो उसके खिलाफ हो जाता It है is against all equality. और सारी समानताओं के विरुद्ध हो जाता है। It is basically a crime in human world. और अगर इंसानी दुनिया में देखें तो ये एक अन्याय होगा, ये एक क्राइम होगा। That's called as grace. और उसी को हम अनुग्रह कहेंगे। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं दूंगा, You will understand it better. आप बेहतर समझ पाएंगे। I am a teacher. मैं एक शिक्षक हूँ I correct important answer papers. और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे आंसर पेपर्स को मैं चेक करता हूँ। Sometimes a student gets 27 marks, 28 marks out of 100. और कई बार ऐसे होता है कि कोई विद्यार्थी को 27 अंक मिले, 28 अंक मिले हैं 100 में से। So what a teacher will do? तो एक शिक्षक क्या करता A है? good teacher. एक अच्छा शिक्षक, Ayo, if I give few marks, the son will pass the examination. He will save 1 year. एक अच्छा शिक्षक ये सोचेगा कि कुछ और अंक में इसे दे दूं तो ये अपनी परीक्षा पास कर लेगा। We all are merciful. हम सब We all दयालु will लोग do हैं। that. Right? It's called mercy. हम सब दया को जानते हैं, It's called mercy. उसे दया कहते हैं। But you know what is grace? क्या आप जानते हैं अनुग्रह क्या होता है? Grace is there is somebody, और कोई ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी है, me, मान लो मैं, 0 marks. 0 अंक मिले हैं, 0. 0। You know what teacher did? आप जानते हो कि उस शिक्षक ने क्या किया? Plus 100 डाल दिया. And school first. I am school first now. स्कूल में पहला नंबर मेरा आ गया। ऐसा आदमी तुम्हारा गांव में होगा, उसको क्या होगा? आप क्या करेंगे बोलो? Yes. क्या करेंगे? पकड़ के मारेंगे, पुलिस में देंगे. How dare you have done this injustice? तुम ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? This is injustice. ये अन्याय है। You know, I'll tell you what is grace. मैं आपसे कहता हूं कि अनुग्रह क्या है। See, we are completely useless people. हम सब बहुत ही बेकार से लोग हैं। There is nothing good in us. हम में कोई भलाई नहीं है। But what God did was, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? He took the credit of Jesus Christ, His own Son. और यीशु मसीह के सारी जो भलाई थी वो अपने पुत्र जो था उसके पास से लिया। Made Him empty. और उसे खाली कर दिया। Made Him useless. उसे बेकार कर दिया। Made Him orphan. और उसे अनाथ कर दिया। And took all the credit and given it to me. वो सारे अंक जो थे वो मुझे दे दिया। And today that is grace. आज वही अनुग्रह है। When you understand what grace is, जब आप समझ जाते हो कि अनुग्रह क्या है, it will kill you. वो आपको खत्म कर देगा। It will crucify you. वो आपको क्रूसित कर देगा। Today we find people fighting for justice. आज हम देखते हैं लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, But grace is against all justice. लेकिन अनुग्रह जो है हर एक न्याय के विरोध है। It is the greatest injustice done to God by God Himself. और ये सबसे बड़े अन्याय की बात है जो परमेश्वर ने अपने आप के खिलाफ किया है। When Jesus did this on this earth, जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर यह बात किया, He broke the hold of religion on this earth. और जो पकड़ धर्म का इस पृथ्वी पर था उसने उसे तोड़ दिया। Every form of religion died 2000 years back. 2000 साल पहले हर एक प्रकार का धर्म का नाश हो चुका, मर चुका था वो। When the curtain was torn from top to bottom, क्योंकि जब वो कर्टन ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से फट गया, and God opened the most holy place, और सबसे पवित्र स्थान को परमेश्वर ने पूरी तरीके से खोल दिया, what really happened? सचमुच क्या हुआ? The temporary arrangement of religion which God Himself made was squashed.
and it was cancelled. जो धर्म का वहां पर एक टेम्परेरी काम था उसे परमेश्वर ने खत्म ही कर दिया। When you understand what grace is, जब आप समझते हो कि अनुग्रह क्या है, then you can do certain things which is impossible for anybody to do. फिर आप कुछ ऐसे काम कर पाते हो जो आम तौर पर लोगों के लिए करना असंभव होगा। Only grace can make us what God wants to do in this earth. केवल अनुग्रह ही हमें वो काम करवा सकता है जो परमेश्वर हमारे द्वारा इस पृथ्वी में करना चाहता है। See, knowing a truth will make you better. एक सच्चाई को जानते जब आप हो तब आप बेहतर व्यक्ति बन जाते हो। It can make you faster, taller, higher, smarter. ये आपको और तेजगी देगा और आपको और ऊंचाई पे पहुंचाएगा। Truth educates us, सच्चाई हमें शिक्षित करता है, empowers us, और हमें सशक्त करता है, equips us. और हमें तैयार कर देता है। But grace लेकिन अनुग्रह kills you, वो आपको खत्म कर kills देता है, us. वो हमारा हत्या कर It देता crucifies है, us. वो हमें क्रूसित कर देता है। That's why Paul is saying, और it's इसलिए no पौलुस longer कहता I है, who live. It's Christ who lives in me. अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। I'll tell you something. अब मैं आपसे कुछ कहता If हूँ, you have to do what God wants you to do on this earth, अगर आपको वो काम करने हैं जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर करना चाहते हैं, you need to understand what grace is. आपको समझना होगा कि अनुग्रह क्या है। You need to understand. You should allow that grace to work in you. आप अनुमति दे कि वो अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करे, Then you can love. फिर आप प्रेम कर सकते हो, Then you can love. फिर आप प्रेम कर सकते Then हो। you can love the most useless people. सबसे बेकार लोग को भी आप प्रेम कर पाओगे, You can love everybody. आप सभी से प्रेम कर पाओगे। Okay? Then you can become. See, I'll tell you, people are praying for unity. लोग एकता के लिए प्रार्थना कर रहे I हैं। tell you, we are all united. हम सब एक ही हैं। Do you think all of us come here? We are all united, right? आपको क्या लग रहा है इतने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं? हम सब एकता में जुड़े हुए हैं। Husband and wives, you are united. पति पत्नी आप में एक एकता है। Even if you have little misunderstanding, still you go home every day. थोड़ी बहुत कोई नासमझी हो जाए तो भी फिर भी आप घर पे जाकर एक हो जाते हो। But what we miss is oneness. लेकिन हम किस बात को खो देते We are हैं? not वो है one. एक बनना। हम See, एक we are नहीं हैं। united. हम एकता में तो हैं। Christians, one are united. और सारे ईसाई धर्म के Churches, लोग, united. कलीसिया के लोग एकता में आते हैं, But we are not one. लेकिन हम एक नहीं हैं। God doesn't want us to unite us. परमेश्वर केवल हमें एक एकता में जोड़ने We के लिए all नहीं are आता है। united. हम सब एकता में जुड़े हुए हैं। Husbands and wives, you are united. पति Nothing to worry. पत्नियां आप एकता में जुड़े हुए हो, But the truth is, you are not one. लेकिन सच्चाई ये है कि आप एक नहीं हो। God's will is oneness. परमेश्वर की इच्छा है एक होना। Today, husbands and wives, they are not one. आज पति पत्नी वो एक नहीं है। That is the greatest problem with सबसे बड़ी the परेशानी family. यही है परिवारों में। Inside the church, we have a lot of members, but we are not one. कलीसिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन वो एक नहीं है। We should become one. आपको एक बनना है। First, you try it with your wife, पहले आप अपने पत्नी के साथ कोशिश करके देखिए, with your husband. अपने पति के साथ कोशिश करिए, Then you work it out in the church. फिर वो आप कलीसिया में भी कोशिश करें। Even as believers, as churches, we need to be one. और विश्वासी होने के नाते कलीसिया अलग अलग कलीसिया के होने के नाते हमें एक बनना है। Today, we all have to be one. आज हम सबको एक बनना है। That is possible only with the grace of Jesus Christ. और ये संभव केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है, So that we can be one ताकि हम एक हो जाएं and we can really love. और हम सचमुच प्रेम कर पाएं। When I first read this word, I couldn't believe it. जब पहली बार मैंने इस वचन को पढ़ा मैं विश्वास नहीं कर पाया। I think we will read, all of us will read this. क्यों ना हम सब साथ मिलकर इस वचन को पढ़ें। Okay? It is 1 John पहला chapter यूहन्ना 3, तीसरा अध्याय verse 16. 1 John chapter 3. We all know John 3:16. हम Right? सब यूहन्ना 3:16 को जानते हैं। For God so loved the world that he gave his one. Right? This is 1 John 3:16. This is little slightly different. ये पहला यूहन्ना 3:16 है, इसमें कुछ अलग बात लिखी है। Can we read this? क्यों ना हम इसे साथ पढ़ें। By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for our brothers. I really cannot believe such a word is there in the Bible. मैं सचमुच विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा एक वचन इस बाइबल में लिखा हुआ है। It doesn't say Jesus died for us. यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी। It says you should die for your brother. यहाँ लिखा है कि आपको अपने भाई के लिए अपनी जान देनी है। It doesn't say Jesus died for you. और ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी जान आपके लिए दिया। It has said you should die for your brother.
ऐसा लिखा है कि आपको अपने भाई के लिए अपनी जान देनी है। Are we ready to die for our brothers? क्या आप तैयार है कि आप अपने भाई के लिए अपनी जान दे सके? Are you ready to die for your wife? क्या अपने पत्नी के लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं? Husbands? पति के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? How many wives you are ready to die for your husband? कितनी पत्नियां यहाँ पर है जो अपने पति के लिए अपनी जान दे सकते हैं? Don't ask me this question after that. मुझसे ये सवाल नहीं पूछना, But I feel, लेकिन मैं if it is समझता said in the Bible, हूं, अगर इस वचन को बाइबल में लिखा it's गया है possible. तो ये संभव है, It's not difficult. ये मुश्किल नहीं है, It's easy. ये आसान है। So let us love each other. तो हम एक दूसरे के साथ प्रेम Let रखें, us really love each other. हम सचमुच एक दूसरे से प्रेम Let us be रखें, crucified. हम क्रूसित हो जाए, Let us understand what grace is. हम सचमुच समझ जाए कि अनुग्रह क्या होता See, है। I tell you one thing. एक बात आपसे कहूंगा, If I am the most useless man, अगर मैं सबसे बेकार व्यक्ति होकर भी, and if God has made me the most glorious man, और परमेश्वर ने सबसे महिमा भरे एक मनुष्य के तौर पर बनाया है मुझे, for which somebody has paid, और उसके लिए किसी और ने दाम चुकाया है, how can I understand this? इस बात को मैं कैसे समझ पाऊं? How can you understand this? आप इस बात को कैसे समझ पाओगे? I want to leave everybody with this question. इस सवाल को आप सबके साथ में छोड़ना चाहता हूं। Grace is a अनुग्रह। war. We are at war. हम एक युद्ध में हैं, Jesus is at war. यीशु मसीह युद्ध में है, We all are soldiers, हम सब एक सैनिक है and we will win. और हम जीतेंगे, We will rule. हम राज्य करेंगे, We will rule हम राज्य करेंगे, in the midst of our enemies. अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेंगे, You will rule. आप शासन करोगे। Psalm 110 verse 2. बन सकता है 110 तीसरा वचन, We will rule. हम राज्य करेंगे, We only will rule. केवल हम ही शासन करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।